ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਬਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਜਿਉਂ ਘਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ, ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੀਰ ਤਰੋਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ, ਪੂਜਾ ਆਸਨ ਥਾਪਨ ਸੋਆ। ਸਿੱਧ ਆਸਨ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਆਦਮ ਤੇਜੇ ਕੋਆ। ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ, ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ। ਸਿੱਧ ਆਸਨ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਆਦਮ ਤੇਜੇ ਕੋਆ। ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ, ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ। ਬਾਬੇ ਧਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ, ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਆਰਸਪੁਰਾ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਨੀय ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਆਖਣ ਦੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਨਾਪ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਰਹੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨੇ ਨਾ, ਦਰਖਤ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਕਲਮ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਤਨੀ ਸਿਆਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਲਮ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁੱਕਣਾ। ਇਤਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀਵਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜੈ ਜੀਵ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਜੀਵਨੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਖੀ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ
इत्थों दे टीचर साहिबाना पासों आप जी ने गुरजीवन के बारे सरवण किया। उस तो उपरंत गुरु घर के कीर्तनिया ने आप जी नूं कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए ध्याना इलाही गुरबाणी के कीर्तन आप जी ने सरवण किए हैं। सो जिन्ना क समा बाकी है यतनशील होवांगे कि समय विच रह करके आप जी दे नाल गुरु पातशाह जी के जीवन के विचों कुछ कु गल्लां, क्योंकि आपां कॉलेज दे विच बैठे हैं, आपां कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी एक सीखण दा केंद्र है। तो गुरु साहब जी ने जीवन जदों आरंभ होया सी उन्होंने पूरे संसार के लोगों को बस सिक्ख्यावां दित्तियां ने, सीखण दी जाच सिखाई। तुसीं सारे जानते हो जदों गुरु नानक साहब का जन्म होंदा है, इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में पता लगता है कि गुरु नानक साहब जी के जन्म तो पहला प्रकाश तो पहला संसार के तीन मत जिहड़े ने सब तो ज्यादा मशहूर सन, इस्लाम मत, ब्राह्मण मत ते सिद्ध दा मत। पर हालात की सन जे गुरबाणी दे विच देखिए तो पातशाह दी बाणी कहंदी है कि कादी कूड़ बोल मल खाए बामन नावे जियां काए जोगी जुगत ना जाने अंत तीने उदाड़े का बंद। धर्म के ठेकेदार लोगों ने अपने थले जिहड़े वसदे लोग सन संसार दे उन्हां दे उत्ते बड़ा कहर मचाया होया सी। सिख धर्म दे विच जिन्हें गुरु साहिबान हुए ने असीं सारियां दे सत्कार करते हैं, किसी धर्म की नखेदी किसी धर्म का खंडन नहीं है। जिवें उदाहरण तौर पर गल करिए कोई राजनीतिक पार्टी होंदी है, जिवें उस पार्टी का जे कोई एक नेता माड़ा हो सकता है तो पूरी पार्टी माड़ी नहीं है, जे घर का कोई एक बंदा माड़ा हो सकता है तो पूरा परिवार माड़ा नहीं है। इस तरह अज भावें उदाहरण अपने ते भी लै लीए, जे सिख धर्म दे विच कुछ कु बंदे माड़े ने, ऐसा मतलब यह नहीं कि सिख धर्म माड़ा है या कि साडा हिंदू धर्म माड़ा या ईसाई धर्म या मुसलमान धर्म। हर धर्म सन्मान योग है, सानू सन्मान भी करना चाहिए। गुरु ने सानू शुरू तो सिखाया। गुरु नानक साहब का प्रकाश होंदा जदों सब तो पहली बार गुरु नानक साहब ने जी आवाज उठाई सी ਉਹ ਸੀ औरत ਨੂੰ ਉਹਦਾ हक दिवाउण दी गल। मेरी भैणां ध्यान नाल सुनियो, आपां अज गल करदे हां कि मुंडे ते कुड़ी दे विच कोई फर्क नहीं है, धी ते पुत्त विच कोई फर्क नहीं है। ये आपां अज गल्लां करनियां शुरू कीतियां ने। गुरु नानक साहब ने 550 साल पहलां इस गल नूं संसार दे लोकां तक पहुंचाया सी। 8 साल की उम्र ते जदों गुरु साहब जी नूं जनेऊ पाउण दे लई रस्म घर दे विच बुलाया गया, पंडित जी नूं, पंडित हरदयाल जी जनेऊ पाउण दी रस्म अदा की। गुरु नानक साहब जी ने बड़ा आदर सत्कार दिता, सारी तैयारी नाल होके करवाई। बैठे जदों जनेऊ पाउण दे लई ते गुरु साहब ने सिर्फ इन्नी गल पूछी कि पंडित जी ये है की है, ते उन्होंने कहा जी जदों ये पा लवोगे ते धर्म दे विच तुसीं प्रवेश हो जाओगे, धर्म दे विच दाखला लैण दे लई जनेऊ पाया जांदा है। गुरु साहब कहंदे नहीं मुबारक योग है, बहुत वधिया गल है। कहंदे फिर ये जिहड़ा जनेऊ है फिर मेरी मां ते मेरी भैन नूं क्यों नहीं पवाया गया मेरे तो पहला, वो तो मेरे तो वड्डे ने, उन्होंने पाना भी जरूरी सी। गुरु साहब की इस गल नूं सुन के पंडित हरदयाल जी ने कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने यह गल दसी कि यह सिर्फ उच्च कोटि दे विच जन्म लैण वाले बंदे ही पा सकते हैं। पातशाह कहते हैं फिर तो मेरे हिसाब दे नाल पूरे संसार नूं पवा दो, सारे ही बंदे एक परमात्मा नूं मनने शुरू हो जाणगे ते कितना वधिया ना हो जावे। पर नहीं, उत्थे गल नहीं बनी। गल बेसिकली ये सी कि सिर्फ ते सिर्फ उस वेले नीवी जात के लोगों के नाल वितकरा किया जाता सी। गुरु साहब कहते मैं इस वितकरे नूं सहन नहीं करांगा। जे जनेऊ पाउण नाल मैं धर्मी हो रहा, मेरे तो पहले मेरी भैन नूं धर्मी बनाओ, मेरी मां नूं धर्मी बनाओ। औरत दे हक दे विच बोलण लई गुरु नानक साहब ने पहली बार इत्थों आवाज शुरू की। पर जो बाबे ने संसार का हालात वेख्या ना, जे साध संगत तुसीं सच्चियों गुरु नानक साहब के जीवन नूं पढ़ना चाहते हो तो भाई गुरदास जी ने बाखूबी गुरु साहब का जीवन अपनी वारां दे विच व्याख्यान किया। समा इतना नहीं कि मैं बहुत गहराई दे विच जावां। तुसीं आम करके सुनिया कि गुरु साहब जी ने 4 उदासियां कीतियां ने, पर प्रोफैसर साहब सिंह जी लिखते हैं कि गुरु साहब जी ने 3 उदासियां कीतियां ने। कोई 4 भी लिखता, कोई 5 लिखता है, पर 3 उदासियां मेन सन। 1507 तो लैके 1515 तक पहली उदासी गुरु साहब जी ने हिंदू तीर्थां वल कीती सी। उदासियां दा कारण की रहा, भाई गुरदास जी की वार तो लभदी है। भाई गुरदास जी कहते हैं कि बाबा देखै ध्यान तर, कि गुरु नानक साहब ने जो संसार वाल वेख्या ना, जलती सब पृथ्वी दसियाई, कि पूरा संसार अग दे विच जलदा होया नजर आया। अग किहड़ी? वो अग सी अज्ञानता दी। अज्ञानता दे हनेरे ने पूरे संसार नूं अपने विच जकड़िया होया सी। कहंदे
बाबा देखे ध्यान तर जलती सब पृथ्वी दिसियाई, बाजों गुरु गवार है करती फिर लुकाई, बाबे भेख बनाया उदासी की रीत चलाई, चढ़िया सोदन तरत लुकाई। गुरु नानक साहब कहते कि ये तो भाई संसार के लोगों का हालात ही बड़ा माड़ा, उच्च जाति वाला नीवे नूं कोल नहीं लगन देंदा, बड़े ओहदे ते बैठने वाला नीवे की गल सुन के राजी नहीं है, लोगों के नाल धक्का है। फिर नानक ने की किया, गुरबाणी विच आंदा है कि नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिनकै संग साथ वड्डियां सुनक्यारी। गुरु नानक साहब कहते मैं उन्हां नूं गलवकड़ी च पावांगा जिन्हां नूं संसार के लोगों ने कहा कि ये नीवे ने। गुरु नानक साहब ने फिर ये चीज़ देखी जो उदासियां आरंभ की, उदासियां का मेन मकसद थी कि सारे संसार के लोगों नाल मिल बैठ करके गुरु नानक साहब जी ने ना आपां कहंदे इंटरफेस डिस्कशन, ये गुरु नानक साहब ने जो शुरू की, क्यों की? गुरु नानक साहब जी ने जो विचार करने का तरीका सी ना, कदे किसी के नाल विवाद नहीं किया, संवाद किया। जे ब्राह्मण नाल बैठे तो उन्हां दे तरीके दे विच गल कीती, कदे गुरु नानक साहब ने विवाद नहीं पैदा होया। ऐसा रब्बी गुणा दी बाणी उन्हां लोकां दे तक पहुंचाई ताकि लोगों के विच आपसी एकता। मैं आरंभता में गल पे कही सी ना कि गुरु नानक साहब जी ने बिखड़ी हुई माला नूं एक सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा परोण का यतन किया। तो जदों आपां वेखी 1507 तो 1515 तक पहली प्रचारक फेरी जदों हिंदू तीर्थां वल कीती, एक उदाहरण दिया, जदों जगन्नाथपुरी दे विच पहुंचदे ने गुरु नानक साहब, हरिद्वार वाली उदाहरण मैडम ने तुहानूं सरवण करवाई सी, जगन्नाथपुरी विच पहुंचदे ने ते उत्थे आरती करके गुरु नानक साहब ने कहा जाता है, गुरु नानक साहब कहते जी सदके मैं आरती भी तुहाडे नाल शामिल हाँ, पर उन्होंने कहा कि कुदरत की आरती करनी है। मैं तुहानूं दसां कुदरत की आरती किहड़ी है। गगन मैं थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मने आलो पवन चवरो करे, सगल बनराए फुलंत ज्योति। कहंदे आकाश जिहड़ा ना एक थाल दे रूप है, ते इहदे विच बैठे हुए जिहड़े सितारे ने ये मोती दे वांगरा ने, हवा जिहड़ी है वो चवर कर रही है, हवा जिहड़ी है वाहिगुरू धूप दे वांगू झुल रही है, दरख्त जिहड़े ने चवर कर रहे। परमात्मा की आरती तो कुदरती तौर पर होई करती है, साडे जे वर्गे बंदे की क्यों औकात असीं परमात्मा की आरती करनी। दुई प्रचारक फिर गुरु साहब जी ने सिद्धां दे कोल कीती, पहाड़ां दे विच जिहड़े लोकी अपने आप नूं सिद्ध कहंदे सन, अपना परिवार घर बार छोड़ के गृहस्थी दा अपना जीवन छड्ड के पहाड़ां दे विच बैठे सन, कहंदे कि उत्थे बैठ के परमात्मा की प्राप्ति होवे। क्योंकि संसार के लोगों का तरीका, आज साडा भी तरीका है कि किसी तरीके नाल रब की प्राप्ति हो जाए। हर बंदा सोचता है कि रब मिल जाए, रब मिल जाए, पर रब किते मिलन की लोड़ नहीं है, किते लभण की चीज़ नहीं। पातशाह जी कहते हैं घट घट मैं हरजू वसै, कि हर एक दे विच परमात्मा बसै, बस भलिया काम की करना तैनूं पहचानण की लोड़ है कि रब किथे है। तो सुमेर पर्वत ते पहुंचते हैं, भाई गुरदास जी की वार चों पढ़न नूं मिलदा है कि सिद्ध आखण नानका मात लोक विच क्या बरतारा। गुरु साहब जी कहते हैं कि सच चंद्रमा कूड़ अंधारा, कि नाथ जी सारे संसार दे विच हनेरा पिया होया अज्ञानता दा, तुसीं सारे ते पहाड़ां ते बैठे हो, तो संसार दे विच किवें चलना है। जदों विचार हुई ना सिद्धा दे नाल, अखीरली बंद विच पता गुरदास जी की लिखदे ने कि सिद्ध पुछण फिर नानका मात लोक विच क्या बरतारा। गुरु नानक साहब जी कहंदे ने कि सब सिद्ध छप बैठे परबती, कौन जगत को पार उतारा। कि जिस तुहाडे वर्गे सारे ज्ञानी बंदे सिद्ध बंदे जे पहाड़ां दे विच बैठणगे ते जगत दा पार उतारा किवें होएगा। उन्हां ने सारियां दी बांह फड़ के गुरु नानक साहब ने कहा चलो धरती दे उत्ते गृहस्थी जीवन संभो, उत्ते नाल रहिंदे तुहानूं रब प्राप्त हो जाएगा। आखिरली गल करिए जे इस्लाम दे वल जदों उन्होंने प्रचारक दौरा किया, तुसीं आम करके गल सुनी होनी कि गुरु नानक साहब जी ने जदों मक्के विच पहुंचदे ने, मक्के वल पैर करके लेटदे ने, वो कहंदे कि मक्के का काजी सारे लोग गुस्से च आ जाते हैं कि इस केड़ा काफर बंदा जिन्हें पैर अपने मक्के तर किते, मक्का बड़ा सुची जगह मनिया जाती है। गल कई बार सुनने को मिलता है कि बई जिथे गुरु नानक साहब पैर करते सन मक्खा उत्ते फिर जाता सी, पर गुरु नानक साहब की बाणी इहो जे करामातां नूं कदे भी मनती नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ गुरबाणी सिखाती है। तो जदों मक्के की धरती के उत्ते जदों काजी ने पूछा कि बाबा तू काफर है, तू अपने पैर अल्लाह की दरगाह दे वल करके बैठा है, लेटे होया है, ते गुरु पातशाह ने उन्हें पता इको गल समझाई प्रैक्टिकली कि काजी साहब जिथे अल्लाह नहीं बसदा मेरे पैर उत्थे कर दो। पश्चिम वल तुसीं कहंदे हो अल्लाह मेरे पैर ने, ते जिथे अल्लाह नहीं है तुसीं मेरे पैर उत्थे घुमा दो। हुण अल्लाह ते हर पासे है, परमात्मा हर पासे है, प्रभु हर पासे है, वाहिगुरू हर पासे है। उन्हां कोल उत्थे जवाब नहीं आया क्योंकि परमात्मा हर एक जगह ते वसिया सी। वो कहंदे कि इदां पुछ लोगे वो कहणगे कि अल्लाह हर जगह वसिया है,
ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕੀਤੇ ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਘੁਮਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਨ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਾ ਪੜ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਰ ਅੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਰਕੰਨਾ ਹੁਆ, ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਲਾ ਪੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦਾ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੱਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ। ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਛੂਤ ਛਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਉਲੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਉਲੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਵਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਛੂਤ ਨੂੰ, ਹਰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਤਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰਸਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ ਪੜ ਪੜੀ ਹੈ ਸਾਥ, ਪੜ ਪੜ ਬੀੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਖਾ ਗਏ। ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੋ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ 'ਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ, ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਵੈ, ਪੜਿਆ ਅਨਪੜਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ। ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਾਂ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈਲਮਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਟੀਚਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੈਲਮਟ, ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਦੂਜਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋਗੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਯਤਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰੈਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨੇ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 115 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਜੀ ਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। डॉक्टर JP सिंह, डॉक्टर शर्मिष्ठा, डॉक्टर नीना, डॉक्टर स्वतंत्र कौर, बाकी स्टाफ मेंबर्स, डियर स्टूडेंट्स, और इस प्रोग्राम को करने के लिए जो यहाँ आज आए हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़्यादा अच्छा नहीं बोल पाता हूँ पंजाबी में, इसलिए मैं अपने जो नॉर्मल तरीका है उसी में बात करूँगा। आप सबको सबसे पहले तो बड़ी मुबारकबाद है इस बात की कि जो दिन आप मना रहे हो। कुछ घंटे पहले मैंने अपने कॉलेज के एक महिला प्रोफेसर से पूछा कि क्या ये डेट फिक्स है, हर साल इसी दिन पे ऐसा होता है, या मुझे ही कुछ कन्फ्यूज़न है। 1469 को गुरु नानक जी का जन्म हुआ, उसके 500 साल के बाद मेरा भी हुआ। और मैंने उनसे एक बात शेयर की कि 1469 और उसके बाद जितने भी 69 आए हैं, उनमें जिन जिन का जन्म हुआ, अगर आप हिस्ट्री पढ़ के देखो तो बहुत बड़े सेंट और टीचर्स रहे हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ इस बात की कि आप उनका जो बर्थ एनिवर्सरी है, जो जन्म दिवस है, आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। डिग्री कॉलेज आरसपुरा, इनके स्टूडेंट्स और टीचर्स, बेसिकली जो आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर इसको इस तरीके से कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा कि बेसिकली हम पढ़ रहे हैं टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक जी। अगर इस मुद्दे को इस तरीके से हम देखते हैं तो इसका कुछ अंदाज़ा, कुछ तौर तरीका बदल जाता है। टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी। उसके बाद कुछ देर के बाद मैंने दोबारा से किसी को कोई सवाल पूछा कि इस बात का क्या मतलब है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी जो हम नहीं जानते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए पूछा जाता है ताकि गलती ना हो। जवाब अच्छा नहीं मिला, फिर से मैंने उस चीज़ को सर्च किया कि आखिर क्या है। हम जिनको मानते हैं, आप शायद यकीन नहीं करोगे, मेरे घर में हर महीने सुखमनी साहब का पाठ होता है, हर महीने होता है। मैं खुद बैठता हूँ उसमें, मेरी वाइफ बैठती हैं, बच्चे अगर साथ हों तो वो भी बैठते हैं। हम खुद इसको मानते हैं। उसके पीछे एक प्रैक्टिकल बात है जो डॉक्टर सुखविंदर कौर बता रही थी और जो इन्होंने भी जो भजन कर रहे थे बता रहे थे। एक प्रैक्टिकल बात है, वो थी मेडिटेशन, जो कि गुरु नानक देव जी ने भी अपने जो उनकी 5 फेमस टीचिंग्स हैं उसमें से एक टीचिंग उनकी वही थी। तो जब मैंने ये बात उनसे पूछी कि नानक जी का नाम नानक जी कहाँ से पड़ा,
तो मुझे कुछ तसल्ली बख्श जवाब तो नहीं मिल पाया, पर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, जो पहले भारत कहलाता था, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे शब्द नहीं थे और डिवीज़न में बन गए, उस भारत में जो आज हमारा हिस्सा इस समय पाकिस्तान में है, ननकाना साहब जो जगह है, वहाँ से 2 भाई बहनों का नाम पड़ा, नानक जी और नानकी जी। नानक जी के आगे से जो बच्चे थे, उन्होंने अपना हिंदू धर्म, जिसका एक बड़ा उस समय प्रचार चल रहा था, उनके नाम पे रखे, जो हमारे, जिसको हम हिंदू लोग माँ लक्ष्मी, और उन्हीं को श्री भी कहा जाता है, उन नाम भी उन्हीं पे रखे, श्री चंद और लक्ष्मी चंद। मैंने इनके बारे में काफ़ी इतिहास पढ़ा है, काफ़ी रिसर्च भी की है, काफ़ी स्टडी की है, पर जो इन्होंने भी बताया कि दुनिया के सारे दरख्त काट के अगर उनकी कलम भी बना दी जाए, वो सारे समंदर का जो पानी है उसको उसकी इंक बना दी जाए, तो हो सकता है कि वो कलम ख़त्म हो जाए, हो सकता है इंक ख़त्म हो जाए। हम उनके बारे में इतनी नॉलेज गेन नहीं कर पाते, उम्र कम होती है, समझने की चीज़ें ज़्यादा होती हैं, इतनी उम्र हो नहीं पाती, उससे पहले ही हम ऊपर पहुंच जाते हैं। तो कहाँ हम ऐसे जो ग्रेट लोग हुए हैं, उन लोगों के बारे में, उनके जीवन के बारे में चर्चा करना एक हमारे लिए भी बड़ी असंभव सी बात है, बड़ी छोटी सी बात है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा डॉक्टर सुखविंदर को, इन्होंने एक बात शेयर की, और जो इधर पढ़ रहे थे इन्होंने भी एक बात शेयर की। दोनों ही बातें और प्रैक्टिकल बातें हैं दोनों ही। उसमें जो एक प्रैक्टिकल बात उन्होंने बोली, वो हरिद्वार में वो पानी वाली, कि अगर ये करतारपुर साहब नहीं पहुंच सकता है तो सूरज तक कैसे पहुंच सकता है। प्रैक्टिकल बात है ये, कि अगर जिंदा लोगों को हम खुश नहीं रख पाते घरों में अपने, तो उनके मरने के बाद हम जो जो कारनामे करते हैं वो एक अब धर्म सा बन के रह गया है, असली में नहीं पहुंचता। हमारे डोगरी में कहा जाता है, जिंदियां नू डांगा ते मोया नू बांगा। तो जब कोई चला ही गया तो अब उसका क्या रह गया। दूसरी प्रैक्टिकल बात जब इन्होंने बात बोली कि मक्का वाली बात, कि मेरे कदम वहाँ कर दो जिधर नहीं है, तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। ये बताना चाहते होंगे पर नहीं बता पाए वक्त की कमी से, कि बेसिकली ऐसा नहीं है। जब उन्होंने बात बोली तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, आप कौन हैं? आप कोई आम इंसान नहीं हैं, तो आप अपने बारे में बताइए। तो उन्होंने आगे से एक ही कहा बात, जो आज एक प्रैक्टिकल बात बन के हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी में आ गई है। एक ही बात उन्होंने बोली। उन्होंने कहा, मैं 5 तत्वों से मिलकर बना हूँ, यही मेरी पहचान है। और 5 तत्व क्या थे? जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, गगन। और अगर आप ध्यान से कभी सोचो, आपको इसका आंसर प्रैक्टिकल रूप में मिल जाएगा, जिसे आप भगवान कहते हो। ये भा से भूमि है, गा से गगन है, वा से वायु है, आ से अग्नि है, ना से नीर है। इन्हीं 5 तत्वों को मिलके एक वर्ड बनाया गया भगवान। पर हम लोग अज्ञानता में उस भगवान को समझ ही नहीं सके। हमने इसको मान लिया एक मूर्ति, एक आइडोल। हमने इसको कुछ अलग तरीके से ले लिया, जबकि गुरु नानक जी ने इसको कई साल पहले ही ये बात क्लियर की बड़े अच्छे तरीके से, कि मैं इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना हूँ। सारी सृष्टि इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनी है, और सब जब हम ख़त्म हो जाते हैं तब भी दोबारा से हम इन्हीं 5 तत्वों में ही आते हैं। यही जन्म है, यही मरण है। बात कर रहे थे आप उनकी टीचिंग्स के बारे में, जो उन्होंने कहा। मुझे ज़्यादा तो नहीं पंजाबी में बोलना आएगा, शायद कुछ मैं वर्ड्स गलत बोल दूं, पर थोड़े से मैं आपको एक कोशिश करूंगा बताने की। जो पहली टीचिंग्स थी उनकी, जो कह रहे थे आप वन चखो करके, क्या है वो, है ना, कुछ ऐसे करके। बेसिकली मैं स्टूडेंट्स को और यहाँ फैकल्टी मेंबर्स को भी एक ये बात बताना चाहूँगा कि हम बोलते सब कुछ हैं, हम करते नहीं हैं। अगर गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स के ऊपर जाना है तो काइंडली आप इस चीज़ को किया भी कीजिए। हम बोलते हैं पर हम करते नहीं हैं। उनका एक ही था, बेसिकली इसका मतलब क्या था जो आप वर्ण चखो। अगर आप प्रिंसिपल मैडम और आप थोड़ा शांत होकर सुनेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे।
तो वो जो वर्ण चुको था वर्ड, वो बेसिकली था शेयरिंग इज केयरिंग, और आज उसका रूप गलत दिशा में ले लिया गया कि मिलकर खाओ तो अच्छा है, जबकि बेसिकली वो था जो गुरु नानक देव जी की अपनी वो गुरुदास भाई जी ने जो लिखी है किताब, मैंने पढ़ी है वो, दैट इज शेयरिंग इज केयरिंग। हम जब अपने आइडियाज़ को, जब बातों को शेयर ही नहीं करते हैं, जिसे आज का हमारा समाज, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट भी बोलता है इनोवेशन, जब हम कुछ शेयर ही नहीं कर पाते हैं तो केयर कहाँ कर पाते हैं। दूसरा जो था उनका कीरत करो, कुछ इस तरीके से ही था, कीरत करो। कीरत करो में जो बेसिकली उन्होंने बात समझाई वो ये नहीं था जो सुखविंदर मैडम कुछ बात बोल रही थी कि नाम ही जपते रहो, इधर उधर करते रहो, बिल्कुल सही बात है। वो कीरत करो का बेसिक मतलब एक ही था, दैट इज द ऑनेस्ट लाइफ, दैट इज द ऑनेस्ट लाइफ। आप अगर ईमानदारी की जिंदगी नहीं जीते हो तो आप कुछ भी नहीं करते हो। अगर मैं ये जरूर बात बोलना चाहूँगा स्टूडेंट्स को, आपको घर वालों ने इधर भेजा है पढ़ने के लिए, पर अगर आप पढ़ नहीं रहे तो आप जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको मौका दिया, बाकी कई लोगों को मौका नहीं मिला है। इसी तरीके से जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं जो इतनी हाई सैलरीज लेते हैं, अगर आप अपनी ड्यूटी ठीक ढंग से नहीं कर रहे तो आप भी जस्टिफाई नहीं कर रहे। मैं प्रिंसिपल हूँ, अगर मैं प्रिंसिपल होकर अपना प्रिंसिपल वाला काम ठीक ढंग से नहीं कर रहा हूँ तो मैं भी जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ। कई लोगों को आदत होती है खिसक जाने की। अब याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा जब हमें ज़रूरत पड़ेगी ना तो ऊपर वाला भी खिसक जाएगा, वो भी हमारे काम नहीं आएगा। सो इफ़ यू आर गेटिंग वेरी गुड सैलरी, हैंडसम सैलरी, यही टीचिंग है गुरु नानक देव जी की कि कर्म करना है तो ये करो, दिस इज़ द ऑनेस्ट लाइफ। एक और आप बात बोल रहे थे, नाम जपो, नाम जपो। नाम जपो बेसिकली इट मीन्स द ट्रू गॉड। जो मैं अपने शब्दों में नहीं बोल रहा हूँ, जो उन्होंने लिखा है मैं उनका वहाँ से उठाकर ही बोल रहा हूँ। नाम जपो, दैट इज द ट्रू गॉड एंड इट मीन्स द मेडिटेशन। एंड व्हाट इज दैट मेडिटेशन? ट्राई टू अंडरस्टैंड कि देयर इज नो, ऑफ कोर्स देयर इज नो मिडिल पर्सन, देयर इज नो मिडिल पर्सन इफ देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन। अगर हमारा कनेक्शन है, खैर हम लोग इतने नॉलेज वाले नहीं हैं कि बड़ी जल्दी ये कनेक्शन ऊपर वाले से सेट हो जाए, इसलिए गुरु की ज़रूरत पड़ जाती है। तो बेसिकली वो नाम जपो क्या था? मेडिटेशन, एक ऐसा योग जिसके द्वारा हम एक्चुअली अपने भीतर को पहचान सकें कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे अंदर ही सब कुछ है। स्टूडेंट्स, आप कभी अपने भीतर जा के देखिए, माँ बाप कितनी मुश्किलों से आपको यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं, पता नहीं कैसे कैसे पैसे अरेंज करते हैं,